Good morning, friends. This is CA Shaurubh Ghosh from Stock Show Deck. आज हम लोगों की दो ट्रेड जो लिया था लास्ट फ्राइडे वही एक्सप्लेन करेगा एंड अलोंग विद दैट आई विल आल्सो टीच यू how even without setup you can you can do a trading purely based on price action. So stay tuned till the last. We start off our life with our GAN setup and this is a GAN forecaster. एंड इसमें क्या होता है कि मैं रिलायंस और कैडिला दोनों में स्टॉक किया है एंड क्यों किया ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन व्हाई आई हैव डन इट. So Reliance, I will explain. This is a usual Gantt sheet, which already I told you that it comes with a royal loyalty bonus and all. And this is a really very powerful setup, which actually at 9-8 a.m. tells you what will be the move and how will it behave. So Reliance में हम देख रहे हैं टू प्री ओपनिंग में 2049 से 15 पैसा लेके ये वो स्टार्ट किया था. सो देयरफॉर इट वाज एक्चुअली एक्सपेक्टेड वाज एट 9 hours 23 minutes 200 hours, which means that Reliance we would not have been able to do anything. Only thing is information that we got that it is a status zero, which means status zero indicates a probability of market going in one direction throughout the day. Okay, that's a very valuable information. And we have also started another service which is called stock diagnosis on demand. ये लाइव मार्केट में होगा तो 1000 रुपीज़ पर स्टॉक एंड ऑफ मार्केट में 500 रुपया पर स्टॉक. And of course, it is intended for education purposes and for no other use. I am not a SEBI registered guy. इसकी पर्पस क्या होता है कि इसमें स्टॉक मार्केट में जब कोई ट्रेड ले लेता है फंस जाता है तो दे टेक माई my suggestion, my advices. So coming back to our setup, so Reliance belongs to a energy sector, right? So we go to the energy sector first, and I also tell you that we have Nikala and other setups. So ये जो जिस जिसको ये देखना है तो you can go to the description box that's in the video and you have your course details, channel link, scanner link, everything is there. So you can go to the description box and then click to get it. So let's start. In the energy sector, we have seen that energy sector in a day, this is a daily chart, right? In a daily chart I am seeing a downtrend. So therefore energy sector, if the sector is a downtrend, then energy stock should be also in downtrend. तो मैंने क्या किया, इसको सेटअप ऑन कर लेता हूँ. सो सेटअप ऑन करने से हम लोगों का ये पता चलता है कि एनर्जी सेक्टर में हो क्या रहा है. Energy sector is on a vertical bar, which means it's a very big move that is also coming up. And also you have this black line is a median line, so median line ke niche hai. So and is your RSI is also 31.3. Of course this is on closing day basis RSI, and these are relays what is the position of the stock. So Reliance में हमने क्या किया है, let's start how we have actually did the trade. So this is the naked chart. Now let us switch on our patterns. Okay, pattern जब हमने switch on किया है, so I will maximize this chart and move it. So ये pattern में आप क्या देख रहा है, we saw that it's a downtrend stock. So downtrend stock में हमने क्या करेगा, this is a 15 minutes chart. तो we were हम लोग जो 30 मिनट्स, ये देखिए 30th of July, तो इसमें क्या हुआ, स्टॉक डाउन ट्रेंड में स्टार्ट किया. सो इसमें on the previous day we ended the day with a positive candle and we started of the day with a negative candle. कोई बात नहीं, बिकॉज हम जानते हैं कि वन साइडेड आज मूव होगा. एंड दिस इज ए लाइटनिंग बार, which means it's a very highly volatile buy. देखिए हमने वॉल्यूम भी यूज नहीं कर रहा है. And other setups I will tell you how it is to be used and why it is to be used. This is in नीचे जो आप देख रहे हैं, नीचे है आपकी RSI है, तो ये हम यूज नहीं कर रहे हैं. हम यूज करेगा कब करेगा हम आपको बताएंगे. नाउ ये वाला जो सेटअप है आप देखिए कि रिलायंस ऑल टाइम हाई की जो लेवल 2 है उसकी नीचे है. दिस आर ऑल ऑटोमेटिकली ड्रॉन, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग. ओके,
So therefore once it is done, I got these lines. These are basically wedge line and these are channels which are very very strong channel. तो मैंने ट्रेड कैसे किया, मुद्दा मेन मेन नेट यही है कि आप ट्रेड कैसे किया है. तो इसमें जब डाउन ट्रेंड हुआ है, व्हाट रिलायंस इज डूइंग, आप ध्यान से देखिए इस जगह से ना, ये वाला जो ग्रीन लाइन है इस जगह के आपका सपोर्ट है. नाउ ये सपोर्ट ने हमने हमने बाई नहीं करेगा बिकॉज इट इज ए डाउन ट्रेंड. सो वी आर एक्चुअली वेटिंग फॉर द अप डाउन ट्रेंड टू स्टार्ट. तो एंड दिस इज अ फेक ब्रेकआउट. if you look at this, now this is a fake breakout. Why? Because sector is in downtrend, stock is in downtrend. So this actually is a very very highly resistance zone and इसके लिए हम डाउन ट्रेंड करेगा, डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेगा, उसीलिए हमने अप ट्रेंड में कोई पैसा नहीं लगाएगा. So it has crossed, and then what is this area? This area is, watch this area carefully. In this particular area, what has happened? In this particular area, you have a median resistance. You have another resistance crossing over, and exactly stock has reversed from this particular area. Third is the yellow line. So you have three big resistances to cross which the stock failed to cross. So this has given me a confidence. Now it will go down. नाउ हमने एंट्री एट व्हाट पॉइंट किया है, हमने ये देख रहे हैं कि ऊपर से आप देखिए इस एरिया में ना रिजेक्शन आ रहा है, ऊपर से ये जो बड़ा बड़ा वीग है इसमें आ रहा है. सो वी हैव नॉट एंटर्ड हियर बिकॉज वी डू नॉट डू एनी ग्रेस वर्क. स्टॉक वी अलाउड टू कम डाउन, स्टॉक रिटेस्ट किया है, अलाउड टू कम डाउन बिकॉज ये देखिए आप नीचे ये सपोर्ट लाइन से, ये ग्रीन लाइन जो है, ग्रीन लाइन से ये सपोर्ट ले रहा है, ऐसे ठीक है, सपोर्ट ले रहा है तो दैट इज ओके. नाउ वी शॉर्टेड रिलायंस एट दिस पर्टिकुलर एरिया, वी शॉर्टेड रिलायंस एट दिस पर्टिकुलर एरिया. व्हाई? अब देखिए द लॉजिक इज वेरी वेरी सिंपल. हम थोड़ा बड़ा करते हैं. इस एरिया में जब रिलायंस आया एंड इट्स अ सपोर्ट एरिया, सो एज पर रूल बुक वी शुड नॉट बाई. ओके, इसमें नीचे आया, रिटेस्ट किया, ये डॉटेड जो लाइन है दिस इज वन स्टैंडर्ड डिविएशन लाइन. ओके, बिकॉज यू डोंट हैव टू रिमेंबर वन स्टैंडर्ड डिविएशन, टू स्टैंडर्ड डिविएशन. दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन. तो यहाँ आया रेजिस्टेंस में, फिर ऊपर गया, रिजेक्शन, फिर ऊपर गया. द मोमेंट ये कोबरा लाइन जो ब्लैक लाइन है, हम इस जगह पे क्यों लिया है, अब देखिए इस जगह पे ना रिलायंस कोबरा लाइन के ऊपर था एंड इस जगह पे मैंने नहीं लिया क्योंकि इट वॉज वेरी क्लोज टू द सपोर्ट लाइन. तो हमने वी अलाउड द स्टॉक टू क्रॉस द सपोर्ट लाइन एंड देन व्हाट हैज हैपेंड, इस जगह पे हमने शॉर्ट किया. क्यों किया? बिकॉज इट हैज गॉन बिलो द कोबरा लाइन and it has gone below the support and it has got already I have all the resistances here, so I have a resistance backup here, so this is the right area to trade. So we have shorted Reliance at 2055. now 2055 में मैंने शॉर्ट किया. what is the lot size of Reliance की lot size है 250. ओके, तो यहाँ करने का बाद हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट ऑटोमेटिकली आप देखिए ये गैन लेवल में लिखा हुआ है 2046. दिस इज द फर्स्ट टारगेट. ओके, नाउ आई विल शो यू वन मोर थिंग, हाउ द टारगेट कैन बी क्रॉस चेक्ड. तो आई कन्वर्ट दिस इनटू ए लाइन चार्ट. नाउ लाइन चार्ट होने का बाद हमने क्या किया, अब देखिए मेरा रिले भी आ रहा है यहाँ. So therefore, at this particular level, that current trend is bearish dispersion, price is below view up, and all those things were coming up in the running market, and it gives you an RSI information. Even if I do not have RSI indicator here, so it will give you the current RSI support. RSI is also weak, below 40 means it is very weak. Now, इस जगह पे हमने क्यों ट्रेड लिया है, अब देखिए. नाउ रिलायंस में आपका रिलायंस में इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम दिस ब्लू लाइन, लुक एट ब्लू लाइन. व्हाई इज इट ब्लू लाइन? बिकॉज इसमें सन, ब्लू, फादर 1 आवर एंड ग्रैंडफादर 1 डे में सेटिंग में है. सो सेटिंग यू कैन ऑलवेज चेंज एज पर योर नीड. सो लेट्स फोकस ऑन द ब्लू लाइन. ब्लू लाइन इज द करंट लाइन. ब्लू लाइन में क्या है, इस जगह से आप देखिए from this particular line, from here to here, RSI has gone up,
correct? RSI, if you look at the RSI meter, RSI has gone up from 53.08 blue line to 57. But how is the stock, how has the stock behaved in this particular area? Stock has gone down in this particular area. आप देखिए यहाँ से आया इधर. So therefore stock has come down from this area to this area. Okay, now I will change the color to let's say, I can change it to, let's say, blue color. Okay, let's say now. So इस जगह पे, so therefore there is I have seen a 1 2 3 4 5 6 7 bar divergence. Now in a 7 bar divergence it is not very powerful. Okay, तो इसमें सीधा हमारा टारगेट क्या मिला? इसमें टारगेट है 2049.85, लो बिटवीन दिस टू. सो देयरफॉर इसकी देखिए 2089 हम कहाँ से आया? यहाँ से उठाया 2049 एंड 2049 आप देखिए इवेंचुअली ये ऑटोमेटिकली आप क्रॉस चेक कर सकता है ऑटोमेटिकली कि क्यों हमने ये टारगेट लिया है एंड हाउ साइंटिफिक इज दी फार्मूला. ओके, मैं नाउ ये दिखाएंगे. आप देखिए दिस इज इवेंचुअली अ गैन लाइन 2045. सो देयरफॉर हम यहाँ जब शॉर्ट करेगा 54 में तो हमारा 45 52 में तो आएगा ही आएगा, बिकॉज दीज आर डबल कन्फर्मेशंस, राइट? सो लेट मी रिमूव दीज टू लाइन्स. नाउ ये आप मेरा जानकारी जब मिल गया है, सो देयरफॉर एट दिस पर्टिकुलर लेवल जब ग्रीन कैंडल है जानकारी मिल गया कि ये जाने वाला है 2054 में सेफ है, इससे ज़्यादा सेफ तो हो नहीं सकता. नाउ इस सेफ होने का बाद नेक्स्ट 2054 में हमने नहीं निकाला, राइट? बिकॉज वी अलाउड द कैंडल टू क्लोज. जब नीचे गिर रहे हम क्यों करेगा? बिकॉज हम ग्रीन ये जो येलो जो लाइन है यहाँ हम निकल जाएगा एंड दिस इज ए मीडियन लाइन सपोर्ट. सो देयरफॉर वी एक्चुअली एग्जिटेड व्हेन यहाँ से जब हमने ये मार्केट घूम रहा था वी अलाउड द क्लोज टू हैपन एंड सिंस दिस इज वेरी क्लोज हमने इस जगह पे निकाल गया है. Okay, so how much price we have got? 2037. तो 2037 and minus 2054 हमको कितना मिल रहा है? 2054 minus 2037 कितना पॉइंट आपको मिला? 17 पॉइंट. 17 पॉइंट इंटू 500, how much you have made? 8500. Cool, very cool. Now let's move to another stock we have taken, that is Cadila. Now Cadila belongs to pharma sector, so we will move to pharma sector. पहले सेक्टर देखेंगे. ये हैबिट बना लीजिए आप लोग, जब देखेंगे तो पहले सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है ये देखिए. फार्मा वाज एन अप ट्रेंड, एक दिन करेक्शन हुआ, उसकी बाद क्या हुआ फार्मा में? नहीं, फार्मा में ये बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल दिया. सो देयरफॉर इट वाज ऑन ए बाइंग ट्रेंड व्हेन वी एक्चुअली टुक द ट्रेड. एंड ये आप देखिए अभी इसमें सुबह से ये जो ओपन किया है उसकी बाद से दिस वाज द ओपनिंग कैंडल एंड उसकी बाद से उठा है. सो देयरफॉर कैडिला ये जो फार्मा पॉजिटिव है, तो मैं कैडिला कैसे ट्रेड किया है? कैडिला इज ऑल्सो वेरी इजी टू ट्रेड. हमने कुछ नहीं किया, इसमें हमने क्या देखा है? दिस वाज ए डाउन ट्रेंड, राइट? कैडिला. सो एंड देन ये पर्टिकुलर जहाँ पे आप देखो दिस इज गैप डाउन. ये ग्रीन कैंडल देखे गैप अप हुआ है, सॉरी नॉट गैप डाउन, इट इज गैप अप. सो इसकी आफ्टर ए डाउन ट्रेंड दिस इज कॉल्ड बुलिश शैश. ओके, सो टर्मिनोलॉजी में मत जाइए. सो देयरफॉर इसमें गैप अप ओपनिंग किया आफ्टर ए डाउन ट्रेंड, gap up opening with a 2 back-to-back green candle, which means the stock is bullish. Okay, now temporary downtrend is over. Now what I will do is I will show you how the stock was traded. I have switched on both the indicators. What this indicator is telling me, that even if I enter it here, आप देखिए on 38th में you got a star here, right? You got a star here. Star means Bollinger Band में inside outside हो रहा है. ये outside है, उसके बाद inside outside हुआ and then on the next candle
अब देखिए नेक्स्ट कैंडल में गैप अप हुआ, जो जो ऑलरेडी हमने बोल चुका है। ना गैप अप होने के बाद हम ट्रेड कैसे करेगा, आई विल वेट टिल द कोबरा लाइन इज एग्जिटेड। नाउ इसमें क्या है, कोबरा लाइन आपने क्रॉस किया सक्सेसफुली, वेरी गुड। तो मेरा पहले ये चीज़ देखिए, जब द मोमेंट आपने ओपन किया है ये आपकी स्टॉक, आप देखिए दिस इज ए ऑल टाइम हाई एरिया एंड ऑल टाइम व्हाट इज माय प्राइस 589 590 टाइप। सो यहाँ जब ओपन किया है, यू एक्सपेक्ट दैट दिस स्टॉक वुड बी मूविंग टू दिस, सिंपल, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस है नहीं। सो देयरफॉर वंस आई हैव, एंड दीज आर ऑल ऑटोमेटिकली प्लॉटेड। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये वाला जो रेजिस्टेंस लाइन है, आई अलाउड दैट टू क्रॉस, एंड ये रेजिस्टेंस आपने कैसे क्रॉस किया है, विथ सक्सेसफुली विथ अ बिग कैंडल। सो इसकी मतलब आपकी कैडिला में एंड अलोंग विद द गैन ट्रेंड शीट, इसमें आया था कि कैडिला में मूव आने वाला है, बहुत बड़ा मूव आने वाला है। सो विद दोज इंफॉर्मेशंस योर कॉन्फिडेंस हैज ट्रिपल्ड। तो इसमें क्या किया, द मोमेंट ये स्टारपुट लाइन का क्रॉस करके गया, वी ऑल्सो वेंट वेरी डिफेंसिव, बिकॉज इन द प्रीवियस डे फार्मा वाज डाउन। तो हमने क्या किया, आई लेफ्ट दिस एरिया, आई अलाउड this particular line, this is a great median line, median is a very powerful line, linear regression। so ये median line जब क्रॉस किया है, the moment it crossed and crossed the high of this candle, we took a trade at this level, यही जगह पे। so this is the price of 582 rupees, we entered the trade। ओके, नाउ 582 में तो ट्रेड घुसा है, उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे 577 5 रुपीज, माई टारगेट इज हियर। 582 में मैं घुसा है एंड 590 इज 8 रुपीज, माई माई स्टॉप लॉस इज 5 rupees, so it's not a big risk reward ratio, but we were seeing the steep angle, ये जो जिस एंगल में उठ रहा था, तो दिस एंगल वाज वेरी वेरी स्टीप, सो देयरफॉर वी हैव टेकन ए वेरी सेफ ट्रेड। ओके, नाउ ये ट्रेड लेने का बाद स्टॉप लॉस वी नो, एंड इस सामने कोई रेजिस्टेंस है नहीं, दिस इज a good resistance, but then it also was broken with a very good candle, and then if you look at at that time RSI was also very strong, and if you look at it now, switch on the volume, नाउ आप देखिए ये सब एरिया में ना रेजिस्टेंस क्रॉस करने का बाद कितना बड़ा बड़ा हाई वॉल्यूम आया है। सो देयरफॉर दिस एक्चुअली गिवन अस ए ट्रेड, ये जो हमने इस पर्टिकुलर जगह पे जो ये लाइन जो क्रॉस किया है, ये लाइन हमने क्यों नहीं निकला, क्योंकि आप देखिए यहाँ से एक हाई वॉल्यूम आया। ओके, these are the things, advanced things that I am teaching, so try to pick up as much as you can, and then our target was around 589.90। 589 में मैंने एक्चुअली 588 में निकाल गया। सो बेसिकली 588 क्योंकि 1 रुपया हम छोड़ के दिया कि आई डिड नॉट वांट टू टेक ए चांस, बिकॉज दिस वाज अगेन ए रेजिस्टेंस लाइन दैट वाज कमिंग अप, this was also a resistance lines coming up, so therefore ये जो resistance lines ordinary resistance lines नहीं है, this is a long term lines, so therefore I respect those lines, and इसमें क्या है, I will take 1 rupees less, but I will take a good trade। so 582 से 589 हमने राइट किया है। 589 is, if you look at 589 minus 582, it gives you 7 rupees into लॉट साइज इज 2200, कैडिला का लॉट साइज है 2200, 2200 कैडिला लॉट साइज इज 15400, एंड वी ऑल्सो मेड 8500 in Reliance, simple cool 23,000 24,000 cool profit। so this is how you actually have to trade, and जहाँ जहाँ आपका देखिए सिग्नल आ रहा है, वो सिग्नल देखिए you have to apply your mind, वो सिग्नल हम लेंगे नहीं लेंगे, because the system will give you signal at every time। so ये यहाँ आपका जो स्पीडोमीटर है, ये this will keep on relaying you, and then this is how you should also you should keep that in mind, that
हम कहाँ से निकलेगा, व्हाट शुड बी माय टारगेट एंड ऑल दोस. ये टारगेट जो है, टारगेट इज ऑटोमेटिकली ड्रॉन, सो देयरफॉर यू कैन ऑलवेज say buy at support and sell at resistance even without any indicator. So therefore, this is, friends, this is the small story of how we trade and what we teach. So these are all only purely price actions. I only use ISI only for divergence, nothing else. And nothing else is required, because even if you switch on everything, right, even if I remove RSI here, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा. Why? Because even I have now no RSI indicator, but you still get RSI informations here. So if you switch on to 5 minutes, तो 5 minutes का RSI उसको दे देगा. अब देखिए 5 minutes में it has come to 46. So therefore these are all important informations that you keep getting while doing trading. So these are the setups and the techniques we teach, so that you do not do quantitative trading, you do less trading but make good money. With this is CS Swarup Ghosh from Stock Show Deck. Bye bye for now. Take care. Be safe.